recording. ठीक है जी. Now find the inner and outer product of x and y. The first thing he is asking that we have to find the inner and outer product of x and y. The second is show that the inner product of x and y is equal to the inner product of y and x. The second thing we have to show that the inner product of x and y is equal to the inner product of y and x. The inner product of xy is xty and the inner product of yx is ytx according to definition. Then the third is that we have to prove that the rank of xyt is equal to 1. xyt का rank 1 है, xyt का rank 1. Now let us first find xty. xty, you have to take the transpose of x. So transpose that was the column vector, and its transpose will become the row vector. Only one row and columns, and here is n rows and one column. The order of the first is 1 cross n, the order of the second is n cross 1. So we can, before multiplication, we can judge the order of xty 1 cross 1. ये n जो कॉमन होता है ये छोड़ देते हैं. You know that m cross n cross p, तो order will be m cross p, उसमें n नहीं आता. But they are conformable for multiplication because the column in the first must be equal to the rows in the second. ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं. Always remember, first के column, second की rows equal, so then they are conformable for the multiplication a b. And if you have to find ba, then you have check the columns of b and rows of a. If equal, then you can find ba. Now first row, first column fixed, so very simple, multiplying the respective elements and adding them. So we have got order 1 cross 1 x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 plus up to xn yn. This is xty. It consists of one row and one column, so its order is 1 cross 1. अब हमने निकालना है xyt. तो xyt हमारा क्या आएगा, देखें ये आपका x आ गया. Now the transpose of y is y1 y2 y3 up to yn. वो जो y का ट्रांसपोज है वो अब रो वेक्टर बन जाएगा. Now the order of the first is n cross 1 and the order of the second matrix or vector is 1 cross n, n cross 1 and 1 cross n. The number of column 1, the number of row 1. So they are conformable for multiplication, and the order of the new matrix after the product will be n cross n. So it will be like this: x1 y1, then second element x2 y1, third x3 y1. Similarly, first column, last xn y1, then the second column x1 y2, then x2 y2, then x3 y2, then xn y2. Similarly, the last will be x1 yn, x2 yn, x3 yn, and the last element will be xn yn. So ये आपका last element is showing its order. The order of this is n cross n. Now we have to find the second ytx. हमने प्रूव करना है कि दोनों बराबर होंगे तो ytx. अब yt को आप लेफ्ट साइड पे put it on the left side. तो again it will be of order 1 cross 1. y1 x1 y2 plus y2 x2 plus y3 x3, and that will be equal to, because y1 x1 is equal to x1 y1. So in order you will write down after the product same x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 up to xn yn. If you take one step between these two steps, which one step? Just listen to me with care. You will write down first y1 x1 plus y2 x2 plus y3 x3
plus up to so on yn xn. Then write this step x1 y1 plus x2 y2 plus up to xn yn. It is of order 1 cross 1. Now clearly we see that xty is equal to ytx. तो ये हमने सेकंड में प्रूव करना था xty is equal to ytx, तो प्रूव हो गया. It has been proved. Now we have to find the rank of xyt. Now we have already find out xyt and this is xyt of order n cross n. तो अब हम कैसे इसमें से take x1 multiply the first row by 1 over x1 multiply the second 1 over x2 third, similarly up to so on. So first we multiply the first row by 1 over x1 to cancel. We are only left with y1 y2 y3 yn. Similarly, when we multiply the second row by 1 over x2, or simply we say that dividing the row 2 by x2 means that 1 over x2 into r2 we get y1 y2 up to yn. Similarly, all the other rows are divided by their respective elements and the last by xn. So we get simply this y1 y2 y3 yn y1 y2 y3 yn, and the last, yani all the rows are the same. Now we have to reduce it to the echelon form, making in the first column all the other entries 0. So first divide, first you will get 0, then you will divide by y1. आपको पहले भी समझा चुका हूं कि हम थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, वरना हमें लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग, पहले अगर हम डिवाइड कर लें y1 से तो बाद में हमें लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय माइनस y1 एंड देन एडिंग इनटू ऑल द अदर रोज. तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, माइनस r1 प्लस r2 minus r1 plus r3 up to so on minus r1 plus rn. All the except the first row, all the other becomes 0 0 0. Now for one first non-zero entry must be unity, as it is the requirement of echelon form, because echelon form gives us the rank of that matrix. Now dividing by y1 means that 1 over y1 r1. So we will get 1 y2 over y1, y3 over y1 up to yn over y1. Now you see number of non-zero rows 1. Number of non-zero rows 1. Hence the rank of xyt जो मैट्रिक्स है xyt उसका रैंक का आ गया 1. तो हमने रैंक फाइंड आउट करना था, तो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 1. तो नो प्लीज लिसन मी विद केयर एंड आंसर माय क्वेश्चन. आई एम आस्किंग यू दैट हाउ मेनी zero rows this last echelon form of the matrix has. How many non-zero rows? Anybody can? Sir, n minus 1 आएगा. Yes, he is right. कौन है? हसनैन है? कौन है? सर हमाद हसन. हमाद हसन, वेरी राइट, बिल्कुल सही है. टोटल नंबर ऑफ रोज n and only one row is non-zero, hence the zero rows are n minus 1. ऐसी बातें हम पूछ लिया करते हैं. प्लीज आप लोग अपने माइंड में ये चीज रखा करें. 2 रो तो आपको नजर आ रही है ना, तो वो 2 नहीं है एक्चुअली, ऑर्डर n है, ऑर्डर n क्रॉस n है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट क्वेश्चन. परहैप्स लेट a b be idempotent, दैट इज, साथ डिफाइन भी कर दिया. जरूरी नहीं कि एग्जाम में हम साथ डेफिनेशन भी आपको दें, आप खुद लिखोगे कि एज ए बी आर idempotent, देयरफॉर a square is equal to a and b square is equal to b. तो फर्स्ट इसमें हमने प्रूव करना है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए बी इज idempotent. तो हमने प्रूव करना है कि इफ ए बी इज
BA, then AB is idempotent. Now we have to show that AB is idempotent. Solution. So AB square is equal to AB into AB. So this is A into BA into B, associative law of multiplication of matrices. Then BA is equal to AB. It is given in the question. आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ये आगे आपने remarks you have to positively write down remarks of each step if necessary, वरना आपके marks कट जाएंगे. बच्चे छोटी छोटी बातों पे they don't pay attention to such things, तो फिर वो कहते हैं जी हमारे नंबर क्यों कम आए हैं. फिर जब हम उन्हें बताते हैं कि बेटा जी इसमें ये तुम्हारी गलती थी, इसका ये नंबर हमने काटा है, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि सर ने ठीक नंबर काटे हैं. क्योंकि आपके दरमियान एक हमने मेंटेन करना होता है आपकी ग्रेडेशन के लिए. लिहाजा जिसने सारे स्टेप लिखे हैं और जिसने नहीं लिखे वो बराबर कैसे होंगे. दे कांट गेट द इक्वल मार्क्स. तो जिसने एक एक बात सही की है, कोई कटिंग नहीं, कोई ओवरलैपिंग नहीं की और एक एक स्टेप लिखा है ठीक, तो उसको तो पूरे नंबर मिलेंगे. So now AB into BA, B associative law of multiplication of matrices always hold. Then AB is equal to BA given. So we will change this BA into AB. Now again associative law. Again the application of associative law. A dot A into B dot B is equal to A square into B square. Now it is again given. Because A, B are idempotent. So A square is equal to A. एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी. तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए बी होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया. टेक द लास्ट स्टेप ए बी. सो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. हेंस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, विच शोज दैट ए बी इज idempotent. Then its second part is if AT is idempotent, so is A. वो कह रहा है कि अगर ए टी आइडेम्पोटेंट है तो ए भी आइडेम्पोटेंट होना चाहिए डेफिनेटली. दिस नाउ वी हैव टू प्रूव. इट मीन कि ए टी आइडेम्पोटेंट है, इट मीन दैट ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी. सिंपल द डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट. ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी. नाउ वी हैव टू शो दैट ए इज आल्सो आइडेम्पोटेंट. तो हमने ये शो करना है कि ए टी बी idempotent है. We have to show that A is also idempotent. तो AB is idempotent given. क्यों स्टक हो गई है. ओहो सॉरी, it is the last page. तो now we have to show that A is also idempotent. तो A square is equal to A dot A. तो A को लिखें A T T, because A can be written as transpose of a transpose, because transpose of a transpose is the matrix itself. A T T, or second matrix is again written in the form A T T, so is equal to A T into A T whole power T. तो ए टी स्क्वायर होल पावर टी, ए टी स्क्वायर होल पावर टी, और ए टी स्क्वायर किसके बराबर है, ए टी के. क्यों? बिकॉज ए टी इज idempotent की डेफिनेशन इट इज गिवन. तो सो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी. इधर आप आगे ब्रैकेट में लिख देंगे और नीचे ले जाएंगे, सारे स्टेप नीचे ले जाइए, आगे ब्रैकेट में लिखते चाहिए रीजनिंग. तो इधर आप लिखेंगे कि एज यानी ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी गिवन, या यूं लिख दें कि एज ए टी इज idempotent. तो ए टी टी इज इक्वल टू ए. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ. ये आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी. या ये लिखें या रीजन दें कि एज ए टी इज idempotent. तो टी टी से कैंसिल ए. तो ए आखिर में मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा था. तो आप आखिर में एक स्टेप लिख लेंगे. याद रखें, ये आपने याद रखना है. आपकी ये बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी कि सर आपने नोट्सों में ऐसे किए इसलिए हमने नहीं लिखा. नो, मैं आपको बता रहा हूँ, एंड पे आप लिखोगे कि एज वी सी दैट
a square is equal to a, hence a is idempotent. तो अब ये आपने घर से करके लाना है और मुझे शो करना है। कोई बच्चा शेयर कर दे। अभी तक तो आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मुझे कुछ भी शो नहीं किया, ना आपने अपने सीआर के साथ शेयर किया है, ना सीआर ने कुछ करके मुझे भेजा है। तो अब ये लिख लो कि शो दैट ए टी इज idempotent, A is idempotent. Show that AT is idempotent if A is idempotent. अगर A idempotent है तो AT भी idempotent होगा। ये आपने प्लीज करके लाना है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। Now we going to start the next chapter 2. चैप्टर 2 मैंने आपको स्टार्ट करवाना है, ठीक है जी। तो मुझे 1-2 मिनट दे दें। मैं अभी चैप्टर, जी जी, यस यस, मैंने क्वेश्चन नंबर 18 जो था एग्जांपल में, जो 73 पेज पे था, उस पर मैंने 2 घंटे लगाए। मैंने जब देखा क्वेश्चन में आपका फॉल्ट आ रहा है या मेरा आ रहा है, वो 73 पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 18 डी है। अभी 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 हम देख लेते हैं। अभी लेट अस सी। पेज आप बता रहे हो 73 पेज? यस सर। ओके ओके, मैं आई एम गोइंग टू पेज 73, then I ask you what's the problem there. $75, $74, ये this is the 73 जी। इसमें मैंने आपने सिर्फ आंसर दिए, मैंने इसको सोल्व किया तो आंसर जो आ रहा था एशलन फॉर्म का, वो आ रहा था 1 -1 रो में, 1 -1 2 -3 0 1 -5 15 0 0 1 -3, ये एशलन फॉर्म आ रहा था। और रिड्यूस एशलन फॉर्म जो आ रहा था वो था 1 0 0 You mean to say that you are not getting this answer, okay? Yes sir. Okay, okay. Please give me some time. I should note your difficulty. जी, page 73, answer not matching. आप बेटा ऐसे करो कि your name please, Azhar, spell AZHAR AZHAR, Azhar, UDDIN. Azharuddin. Yes sir. Azharuddin, take my contact from your CR. Okay, then Yes, I will tell you, I will solve it whenever I will, positively today I will find some time for this problem. I will check it, then I will share it with you. अगर आपका आंसर ठीक हुआ और ये नहीं सही तो मैं इधर भी ठीक करूंगा और आपको बता भी दूंगा। अगर ये सही है तो मैं सॉल्यूशन आप सबको शेयर कर दूंगा। ओके, इज इट ऑल राइट? ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरा नंबर आप ले लेना और मुझे अपना नंबर शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मैं आपसे शेयर करता हूँ चैप्टर 2। चैप्टर 2 किधर चला गया? चैप्टर 2 कॉपी, देन
देखो भाई चैप्टर 2 शेयर हो रहा है तो भाई सर, हेलो नहीं हो रहा। नो सर, अभी तक तो नहीं हो रहा। अच्छा कर लेते डोंट वरी। नो सर। ओके अभी हो जाता है। होना चाहिए था। देखो अब भी नहीं हो रहा। चैप्टर 2 लीनियर अलजेब्रा नो सर। नहीं हो रहा। नो सर। अच्छा बेटा एक मिनट मुझे टाइम दे दो, मैं दोबारा से करता हूँ ये सारा। ये गेस्ट कौन है भाई? ये गेस्ट किधर से आ जाते हैं? कॉफी पेस्ट ये देखें अब भी नहीं हो रहा। क्यों भाई? हेलो हेलो नो सर, नो सर। नो सर। क्या मसला हो गया भाई आज? क्यों नहीं शेयर हो रहा? सर आपने तो अपलोडिंग पे नहीं लगाया टीम पे। यार ये पता नहीं, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ जैसे हमेशा करता हूँ। आज वो 2 चैप्टर खोले हुए थे ना। चलो फिर ट्राई करते हैं, वरना फिर कुछ करते हैं इसका। फिर इस पे स्क्रीन पे आ रहा है। आई डोंट नो कि ये क्या चक्कर है। आप स्क्रीन चेंज हो गए सर। यार वो फिर उस पे आ जाता है। मैं मीटिंग दोबारा शुरू करने के हक में नहीं हूँ। अब देखें अब भी नहीं आ रहा। क्यों भाई? आगे सर। आ गया? सर ओके ओके ओके। लो आप जरा इसको फर्स्ट पेज को पढ़ो। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे आप 2-4 मिनट दे दो। मैंने गोश्त वाले को फ़ोन करना है कि हमारे लिए रख छोड़े, वरना वो बेच के चले जाते हैं। तो ये आप पढ़ो ज़रा थोड़ा सा, चाहे अपने नोट्स निकाल लो, तो मुझे सिर्फ 1-2 मिनट दे दो। कैसे दुकान पे आ रही हैं? नहीं नहीं सुन ना मेरी बात। तू बकरा ज्यादा बड़ा तो नहीं ना?
अच्छा सुन इकराम तू मेरे वास्ते रखनी है ते मैं तेरे को पहुंचाऊंगा 10 बजे के फौरन बाद 10 सवा 10 तक चल मेरी 10 बजे क्लास खत्म होनी है फिर मेरी 11 बजे क्लास है उसके बाद मैं जुमे की भी तैयारी करनी है ते तू ना तू साफ सूफ करके ते तू रखनी है वो जेड़ी अपना इकराम अच्छा तोल के मेरा चन साफ करके रखनी है ते फिर मैं आके तेरे को ले लांगा 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ लेकिन मेरी पसंद का बनाना है हाँ चलो चलो साफ तोल के साफ करके जरूर रख दी चलो चलो देर नहीं लानी आज मैं ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज फोन और आगे जी बेटा जी हेलो हेलो अच्छा जी दिस इज ऑल अबाउट लेट अस सी व्हाट just listen to me please hello Yes, sir. oh what is the matter Yes, sir. प्लीज म्यूट करो अपने आप को प्लीज मैं मीटिंग ऑप्शन में दोबारा जाके करूं कि इट्स ऑल राइट It's all right, sir. Let's start. linear algebra system of linear equations and their solutions now we are talking about system of linear equations and how to solve these linear equations preliminaries introduction and equation of the form a1x1 plus a2x2 plus a3x3 up to an xn there are number of variables n is equal to b a1 a2 a3 up to n are all real constant including b and x1 x2 x3 all n variables so usually assumed to be real number called a system of linear equation अगर ये एक से ज्यादा हो such a linear equation is called a system of the theory of matrices has been fully implied in various branches of pure as well as applied mathematics in what follows we shall apply this theory to the solution of m linear equation in n unknown जब एक से ज्यादा इक्वेशन दी हो तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज नोन एज system of linear equation and we have to find the solution of that solution is very simple when number of variable number of equations are equal exactly it gives one solution unique solution but we have to understand that when we are given m the number of linear equation given m and the number of unknown are variables वेरिएबल अननोन ही होते हैं ना उन्हीं को निकालने को हम सॉल्यूशन बोलते हैं एन अननोन एम लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा ये सारा कुछ आपने सीखना है नो हियर इज ए सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन एन अननोन दिस होल सिस्टम इज नोन एज सिस्टम 1 a11x1 a12x2 a1nxn Similarly, a21x1 plus a22x2 plus a2nxn is equal to b1. am1x1 am2x2 amnxn bm. तो m रोज हैं आपकी n आपके कॉलम्स हैं क्योंकि n आपके अननोन हैं तो दिस इज द सिस्टम वेयर n unknown are x1 x2 x3 xn where aij and bi are scalars aij और bi क्या है कोई स्केलर नंबर है I ranges from 1 to m and j ranges from 1 to n I ranges from 1 to m j ranges from 1 to n तो चूंकि I यूज हो रहा है उसमें bi में तो वो b1 b2 up to bm आप देख रहे हैं उसमें now this system can simply denoted by capital A x is equal to b where A is a coefficient matrix x is a column vector b is also a column vector
यानी इसमें अगर आप ये वैल्यूज पुट करें, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a, x and b in it, and after multiplication you get all the system of equations given above, comparing the left and right hand side. जब दो मैट्रिसेस बराबर हों तो पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, लास्ट के बराबर, दे मस्ट बी इक्वल। तो इक्वेट करने से यू विल गेट अगेन द इक्वेशन। सो ए इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और अगर इसमें हम ये बी भी शामिल कर लें, ए के एंड पे हम B1, B2, B3, Bm लिखें, तो वो ए बी मैट्रिक्स बन जाएगा। वो क्या उसको बोलते हैं? एनीबॉडी कैन आंसर? ए बी मैट्रिक्स जब आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दैट मैट्रिक्स? यस, एनीबॉडी? ए बी मैट्रिक्स जब साथ आ जाता है? नहीं, जब इधर आप देखें सफिक्स नोटेशन में ए के साथ बी लगाएं और ये जो B1, B2 है इसको मेक द लास्ट कॉलम ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लास्ट कॉलम आप लिख लो B1, B2 अप टू Bm। तो ए बी से डिनोट करते हैं, ए स्मॉल बी सफिक्स नोटेशन में। नो व्हाट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड? अभी तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना आपके सामने, इट इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर वो क्या कहलाता है? एनीबॉडी? नहीं पता। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड, आर्गुमेंटेड नहीं कहना, आर्गुमेंटेड। AUGMENTED, आर्गुमेंटेड। समझ गए बात को? आगे लिखा हुआ भी आ जाएगा। डेफिनेशन ये आप पढ़ लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1, x इज ए कॉलम वेक्टर of unknown and b is a column vector on the right hand side of the equations. Definition: homogeneous non-homogeneous system of equation. Homogeneous and non-homogeneous system, agar the equations given in system 1 is called a system of non-homogeneous equations if b never equal to 0, and if b is equal to 0, b never equal to 0 का मतलब है कि कोई उसमें बी जीरो भी हो सकता है और बहुत सारे नॉन जीरो भी। जरूरी नहीं कि सारे ही नॉन जीरो हों, ये इट इज नॉट एसेंशियल। लेकिन होमोजीनियस के लिए इट इज क्वाइट एसेंशियल दैट ऑल B10, B20 अप टू Bm0। तो इफ B is equal to 0 then the system is called a system of homogeneous equation. Homogeneous equation. Then definition: an ordered n tuple. जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसी तरह एन ऑर्डर्ड एन टुपल। एन टुपल मीन कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। y इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लिखते हो, सिमिलरली इन दैट वे y इज रिटन एज विद इन ब्रैकेट्स y1, y2, y3 up to yn is called a solution to the system 1 if x1, x2, xn are replaced by y1, y2, y3, yn respectively in each equation. The resulting statement is a true statement. यानी इक्वेशन में फर्क नहीं पड़े, इक्वेशन सेम रहे तो ये क्या कहलाएगा? फिर ये सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी हर एक में, हर इक्वेशन में अगर हम x1, x2 को रिप्लेस कर दें xn को by y1, y2 up to yn, then this ordered n tuple will known as the solution of that system of equation. Solution of that system of equation. ये पढ़ लीजिएगा भाई, लिखा हुआ है सारा कुछ। System 1 equivalent equation, page 4, equivalent equation. Let we are given two system of equations. Ax is equal to b, where a is equal to aijm cross n, b is equal to column vector consists of m elements, and x is a column vector consists of n unknown x1, x2 up to xn. Then another system is given: a dash x is equal to b dash, where a dash is equal to aij dash m cross n. Same number of elements. B dash is equal to b1 dash, b2 dash, bm dash,
but x is the same, x1, x2, xn, then the two systems are said to be equivalent. That is, system 1 is equivalent to the system 2 if the two matrices, कौन से two matrices, AB कौन सा है, ये देखें, ये लाइन आप डॉटेड भी ले सकते हो, सिंपली ले सकते हो, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी डैश। देखिए इधर जरा आप दुरुस्त कर लें, इस गलती को आप ठीक कर लें। ये जो ज्यादा लाइनें आपको, यू आर सीइंग मैनी लाइंस, नो, इट इज ओनली वन डॉटेड लाइन और सिंपली ए लाइन, इट इज ए डॉटेड लाइन, ओनली वन लाइन हियर, जैसे कि ऊपर वाले में है। देखिए इसमें जैसे कि लास्ट पिछले प्रीवियस पेज पे लास्ट स्टेप में एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, ये गलती से ज्यादा लाइनें डाल गई हैं। और आर रो इक्विवेलेंट, अगर ये दोनों मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट हो जाएं, यानी फ्रॉम द प्रीवियस ए बी वी कैन गेट ए बी डैश, ए डैश बी डैश after some elementary row operation, then the two systems are called equivalent system of equations. The two given system are called equivalent system of equations. वो ऑपरेशन कौन से हैं गिवन, जिनके करने के बाद हम equivalent system get करेंगे? Any two equations are interchange. First rule, any two equations are interchange. Any equation of 1 is multiplied by a non-zero scalar number, and the third is a scalar multiple of an equation. 1 is added to all the entries of another equation of 1. यानी पहला रूल ये है कि कोई दो इक्वेशन, बिल्कुल वो जैसे रूलिंग आपको बताए है एशिलॉन में, उससे मिलती जुलती चीजें तीन बता रहा हूँ कि ये एक से दूसरा कोएफिशिएंट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हासिल कर लें। कैसे कि एनी टू इक्वेशंस आर इंटरचेंज्ड, कोई दो इक्वेशन आपस में इंटरचेंज कर सके। एनी इक्वेशन ऑफ 1 इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर, थर्ड इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ एन इक्वेशन 1 इज एडेड टू अनदर इक्वेशन ऑफ 1। यानी किसी भी नंबर से, स्केलर नंबर से किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी दूसरी इक्वेशन जो सिस्टम की है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर दें, तो ये तीन ऑपरेशन ऐसे हैं जिनसे हम द थ्री ऑपरेशन लिस्टेड अबव आर कॉल्ड एलिमेंट्री एडमिसिबल ऑपरेशंस, एलिमेंट्री एडमिसिबल ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये देखें ए बी इज नोन एज आर्गुमेंटेड। ए यू पेज 6 पेज पे आप देखिए, मैं इधर क्लियरली आई एम राइटिंग डाउन हियर कि ऊपर जो मैंने दिया है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ अलोंग विद द लास्ट कॉलम एज ए मैट्रिक्स बी, कॉलम वेक्टर b1 b2 b3 bn is called or known as augmented matrix. It is quite important to mention that the system of equation 1 has a solution if rank of A is equal to rank of AB. That is, rank of A or rank of AB, what is A? The coefficient of matrix. Matrix consisting of all the coefficient. And rank of AB augmented matrix, दोनों का rank बराबर हो, तो quite important to mention that the system of equation 1 has a solution. तो उस सूरत में solution होगा, otherwise it has no solution. So you have to remember that under which condition the system of M homogeneous equation in n known has a solution. ये आपने याद रखना है। अब now we learn Gaussian elimination method. ये पहले भी भाई आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, जो आपका चैप्टर है, आई डोंट रिमेम्बर के फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, उसमें आप
Gauss elimination, a Gaussian elimination method you have gone through. Again, it is the repetition of that. In this method, one by one, we one by one, the variable x1, x2, x3, xn might. In this method, we one by one eliminate. Eliminate क्या चीज कम कर रहे हैं? Elimination किसकी हो रही है? The variables x1, x2, xn minus 1 till we get the value of xn. देखिए, मैं छोटी सी मिसाल लेके आपको समझा दूं. जैसे एक्स वाई में दो इक्वेशनों में आप जब सोल्यूशन निकालते हो तो उसका वन ऑफ द मेथड इज कि यू इक्वेट द कोफिशिएंट. अगर आप x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी. y के इक्वेट करके माइनस करो या प्लस करो, जैसे भी वो कैंसिलेशन हो जाए. तो x की पहले निकाल लो या y की निकाल लो. बिल्कुल इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे? पहले x1 को एलिमिनेट करेंगे, यानी पहली दूसरी इक्वेशन का, फिर पहली का तीसरी के साथ, फिर पहली का चौथी के साथ. जितनी भी हाउ मेनी इक्वेशंस आर गिवन इन दिस सिस्टम, वो फिर एक वेरिएबल कम हो जाएगा. फिर x2 को इक्वेट करके एलिमिनेट, फिर x3 को. सिमिलरली वी विल गेट द सॉल्यूशन xn is equal to some value. Then by the backward substitution we get all the other values xn minus 1, xn minus 2 till we get the value of x1. तो आगे हम ये आप डिटेल पढ़ लें. Let us see example 1. Now we find the solution of example 1. Example 1 is consist of this system consisting of 3 variables and 3 equations. x1 minus x2 plus 2x3 0, 4x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 1. ये देखिए, ये तीन जो सेकंड इक्वेशन है 3 पावर में डाल गया. ये पावर में नहीं है, ये सफिक्स नोटेशन में है, नीचे है. आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी. आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी. आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. आपने वैसे ही लिखना है जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे. मैं साथ साथ सारी आई एम गिविंग यू ऑल द इंस्ट्रक्शन अबाउट योर असाइनमेंट्स, अबाउट योर मिड, अबाउट योर फाइनल एग्जाम. सो please keep these instructions in your mind. So now we eliminate, we multiply equation 1 by 4, multiplying equation 1 by 4 and subtracting from 2. 2 में से subtract किया 1 को. किसी में से कर लें, 1 को 2 या 2 को 1 में, it is all the same. It does not affect the question. तो हमारे पास आ गया 5x2 minus 6x3 is equal to 1. Again subtracting equation 1 from 3. उसमें multiplication, no need of multiplication. Simply after subtraction we get the equation in x2, x3 because the coefficient of x1 already same. उसमें 4 से multiply किया था, coefficient same नहीं थे. इसमें चूंकि same है, इस वजह से हमने there is no need of multiplying any of these two equations by any of constant equation. I am talking about equation 1 and 3. Now we get another equation which is 2x2 minus x3. अब आपके पास जो सिस्टम बना वो कौन सी इक्वेशन बनी? अब आपने क्या करना है कि जो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये देखिए पीछे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, उनमें इक्वेट कर लिया x2 को. देखिए दो इक्वेशन आ गई, ये 2 और 3. यू आर एट द स्क्रीन, यू आर लुक 5x2 minus 6x3 1 and 2x2 minus x3 minus 1. आप x2 को इक्वेट करें so that after subtraction we get the value of x3. You see that x3 is minus 1. नो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखिए अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई. 3 इक्वेशन, पहली x1 minus x2 plus 2x3 0 1, इक्वेशन 2 5x2 minus 6x3 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये ऊपर जो लास्ट है.
x3 इज इक्वल टू -1। नो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि x3 की माइनस पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x3 -1 into and then getting the value of x2, then putting the value of x2 x3 in equation 1, getting the value of x1। तो ये देखिए x3 -1 x2 -1। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया आफ्टर पुटिंग इन दी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास आ गया ये 1 -1 -1। तो सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे? सोल्यूशन आप जरा सुन लीजिए, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, इसके इधर लिखेंगे x1 x2 x3 इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 1 -1 -1। आगे लिखेंगे आंसर। फिर सुन लें x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 -1 -1 आंसर। यूं लिखेंगे आप, मैं इधर छोड़ दिया हुआ है, मैंने x1 x2 x3 नहीं लिखा, आप जरूर लिख लें, इधर दुरुस्त कर लें। आगे इसका सेकंड मेथड है और ये ज्यादा इजी, इट विल बी मोर इजी फॉर यू। आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेंगे और फिर आप ले लेंगे आफ्टर कोफिशिएंट मैट्रिक्स यू विल गेट ए बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और उसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये मेथड ज्यादा ठीक रहेगा। फिर लास्ट से आप इक्वेशनें बना लेंगे। ये देखिए आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी विल रिड्यूस इट टू द एशेलॉन फॉर्म। ये आपकी आखिर में एट द एंड वी गेट द एशेलॉन फॉर्म। ये देखिए दिस इज योर एशेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। व्हिच वन? 1 -1 2 0 0 1 3 -4 0 0 1 -1। अब आप इसमें देखिए कि आपका ये इक्वेशनें बनी। अब इक्वेशनें बच्चों को बनानी नहीं आती, ये जरा सीख लीजिए मेरे से। 1:x1 -1:x2 प्लस 2:x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या आएगी? 0:x1 प्लस 1:x2 प्लस 3:x3 इज इक्वल टू -4। और लास्ट आएगी 0:x1 प्लस 0:x2, वो दोनों 0 हो जाएंगे और प्लस 1:x3 इज इक्वल टू -1। तो ये जनाब सिंप्लीफाइड फॉर्म में तीन इक्वेशनें आ गई, आपको सामने नजर आ रही हैं पेज 10 पे। तो अब फिर वही आंसर, यू आर गेटिंग द सेम आंसर आफ्टर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब एक आखिरी बात सुन लें कि आंसर आपने इस तरह लिखना है। ये दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग द आंसर। पिछले में मैं आपको बता चुका हूं। अब एक लास्ट आप बात सुन लें, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। आप भाई अब्दुर्रहमान, आप अटेंडेंस ले लो ताकि फिर मैं लेक्चर एंड करूं, और अटेंडेंस मुझे फौरन भेज दो क्योंकि साथ साथ मैंने रिकॉर्ड कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप एशिलॉन से आगे आप चले जाएं रिड्यूस एशिलॉन में, तो डायरेक्ट आप वैल्यू गेट करेंगे। वो कहलाता है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, दैट इज नोन एज गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो ये आगे कुछ प्रैक्टिस करवाई है, कुछ एग्जांपल आप देख के आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। काफी है आज के लिए। ओके, ऑल राइट। शुड आई मीटिंग मुझे खत्म कर देनी चाहिए? क्यों भाई अब्दुर्रहमान? प्लीज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बाकी सबको अल्लाह हाफिज। सर बात सुनेंगे एक मिनट सर? जी जी श्योर सर। जो एग्जांपल 1 में गॉसियन मेथड है सर, उसमें ए बी ऑगमेंटेड मेथड है, वो कैसे है वो बताइएगा एक बार। जी जी, मैं देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जब आप राइट हैंड साइड के कॉलम के एलिमेंट ऐड कर देते हो तो वो आपका बन जाता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आप आगे, मैंने सो मैनी एग्जांपल्स आर गिवन, वरना मुझे नोट्स दोबारा शेयर करके बताना पड़ेगा। आप घर जाके पढ़ो, फिर ना समझ आए नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे, फिर हम और कुछ करेंगे। ओके ठीक है सर। ये पेज नंबर 7 पे जो आपने मल्टीप्लाई करवाई है रो नंबर 1 को 4 से, सर वो मल्टीप्लाई नहीं मुझे लगता ठीक हुई।
आपने अच्छा, पहले वो x1 के सुनो साथ सुनो ना मल्टीप्लाई करवाया, सुनो बाकी x2 सुनो और ना x सुनो, जस्ट जस्ट लिसन टू मी। घर जाके चेक करो, फिर कोई गलती है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट आउट करो। अब जाके अपने हाथों से करो, ठीक है? फिर ठीक है अगर सर। ठीक, हाँ फिर ठीक नहीं है, मैंने नोट्स तो वैसे काफी केयर से, काफी एहतियात से बनाए होते हैं, तो आप सर घर ये जाके गलती करो। है। नहीं नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने अभी चेक नहीं अभी कर सकता। ओके, मुझे और भी ओके आज काम है, वरना तो ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके।